شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ خلیفہ امیر اہل سنت کا یورپی ملک جرمنی میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد نیدرلینڈز کا سفر۔ فیضان مدینہ روٹرڈیم میں ہونے والے عظیم الشان اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ 24 اپریل 2026 کو جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد دھوراجی کالونی کراچی میں تقسیم اسناد اجتماع۔ مفتی محمد حسان اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی گئی۔ صحرائے مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 اپریل 2026 کو ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا۔ نگرانی پاکستان مشاورت نے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، رہنمائی کرتے ہوئے اہداف بھی دیے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے افسوسناک خبر، مبلغ دعوت اسلامی زہیر اتاری کی خالہ قضائے الہی سے انتقال کر گئیں۔ نمازی جنازہ میں مرحومہ کے عزیز و اقارب اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے نمازی جنازہ پڑھایا اور ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ فیضان مدینہ کروگوے ٹانگا میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کرام اور دیگر عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر۔ دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ 28 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں گوشت فروش اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گوشت کے کاروبار سے وابستہ عاشقان رسول میں دعوت عام کی گئی۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران کی لنڈی کوتل خیبر پختونخوا کے پریس کلب میں صحافیوں سے ملاقات۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ ویسے پارسل تو کروا لیتے ہیں لوگ کروانے والے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا بہت جھجک ہوتی ہے، اگر جھجک اڑا دیں تو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بچ گیا نا وہ پھینک دیا جاتا ہوگا، تو اس طرح اگر پارسل لے لیں آپ، بھلے کسی اور کو دے دیں، خود آپ کے بچے نہ بھی کھائیں تو کسی کے پیٹ میں جائے، اور اگر یہ پتہ ہے کہ ہوٹل والا ضائع نہیں کرے گا تو اگر چھوڑ دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ہوٹل جو ہوتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے ضائع نہ ہوتا ہو، آگے پیچھے اس کو یوز کر لیا جاتا، مجھے کوئی اس کی ڈیپلی معلومات نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ روٹی لے لوں گا جو بچ گئی ہے، اس میں میری عزت میں فرق آئے گا، لوگ باتیں بنائیں گے، میرا مذہبی تشخص ہے وہ ڈیمیج ہوگا، تو پھر روٹی چھوڑ دی جائے، کھانا بھی چھوڑ دیا جائے، نہ لیا جائے، کہ لوگ یہ نہ بولیں کہ جیسے آپ کا گیٹ اپ اسلامی ہے، بولے یار مولانا لوگ بڑے حریص اور لالچی ہوتے ہیں، اب بچا ہوا کھانا بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی لے گیا بھائی، چمڑی جائے پر دھمڑی نہ جائے، تو اس طرح اپنی عزت بچانا یہ بھی لازمی ہے۔ تو اپنی عزت خراب ہو رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ چھوڑنا جو چھوڑ دیا نا، اپنے پلیٹ میں بچا دیا، کچھ قورمہ بچا دیا تو آدھی روٹی بچا دی، یہ چھوڑ کر چلا جانا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ ضائع ہم نے کر دیا، یہ گناہ نہیں ہے، اور عزت بچانا یہ لازم ہے بلکہ واجب ہے کہ اپنی عزت جہاں خراب ہوتی ہو اور شریعت کی چھوٹ ملتی ہو تو وہاں اپنی عزت تو بچانی ہوگی، عزت خراب نہ کرے لوگ، ورنہ مذہبی گیٹ اپ والے کو دیکھ کر پھر سارے مولاناؤں کو جو ہے نا وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بچ کر ہم نے چھوڑ دیا نا، تو ہم گناہگار اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پھینکا نہیں ہے، ہم نے برتن میں یہ چھوڑ دیا، اب یہ جو اٹھا کر پھینکے گا اگر کوئی تو پھر جرم اس کا ہوگا، ورنہ تو یہ کہ معاشرے میں کوئی بچے گا نہیں،
प्लेटों में सभी छोड़ते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, यूरोप से खबर दें, जहां जर्मनी में दीनी कामों की मसरूफियात के बाद खलीफा अमीर अहले सुन्नत का नीदरलैंड सफर हुआ। इस दौरान रोटरडेम में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने का ज़हन दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। यूरोपीय मुल्क जर्मनी में दीनी कामों की मसरूफियत के बाद खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली का नेकी की दावत आम करने के लिए दूसरे यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड्स का सफर हुआ, जहाँ 24 अप्रैल 2026 को फैज़ान मदीना रोटरडेम में दावत इस्लामी के तहत अज़ीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें रोटरडेम के कुर्ब जवार समेत नीदरलैंड्स के दीगर शहरों और दीगर यूरोपीय ममालिक से भी बिजनेस कम्युनिटी, तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स इस्लामी भाइयों समेत मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत हुई, जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से सुन्नत भरे इज्तिमा का आगाज हुआ। और इसके बाद खलीफा अमीर सुन्नत मौलाना हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने सुन्नत भरा बयान किया। जो हमें जिंदगी मिली हुई है, हम ये मौका हाथ से ना जाने दे, ये मौके को जो ना गनीमत जानते हुए हम इसमें जो ना खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और जो हमारा हकीकी मकसद है हम इसको पाने के लिए भरपूर कोशिश करें। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये अय्याम तुम्हारी जिंदगी के सफ़हात हैं, इनको अच्छे अमाल से जीनत बख्शो। दौरान बयान खलीफा अमीर सुन्नत ने सुन्नतों की इत्तिबा व पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने, कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तरगीब दिलाई। इसी दौरान खलीफा अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए नेकी की दावत आम करने का जहन दिया और दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए नेकी की दावत आम करने की तरगीब दिलाई। बंदे का हर अमल खालिस अल्लाह करीम की रजा हासिल करने के लिए और शरीयत के बयान करदा तरीके के मुताबिक होना चाहिए। जिंदगी हमें इसलिए मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें और ढेरों नेकियां लेकर इस दुनिया से जाएं। हर लम्हा अल्लाह करीम की इबादत और उसकी इताअत में गुजारें। अगर कोई रिस्क की तलाश में है, अगर कोई हलाल कमाने के लिए निकला है, तो वो राह खुदा में दीन इस्लाम हर जगह हमारी रहनुमाई करता है। उसने हमें कमाने के भी उसूल बताए, कमाने के भी तरीके बताए, उसने हमें सोने के भी उसूल बताए कि सोना किस तरह है, जागने के बाद क्या करना है, खाना किस तरह खाना है, कि चलते फिरते खाना नहीं खाना, बैठकर खाना खाना है, रोशनी में खाना खाना है, यहाँ तक कि पानी भी रोशनी में पीना है और बैठकर पीना है। तो इस्लाम हर जगह हमारी रहनुमाई करता है। नाखून काटने तो इसका भी तरीका बता दिया, सुन्नत तरीका ये है। बाल किस तरह बनाना इसका भी तरीका हमें बता दिया, लिबास किस तरह पहनना है। तो ये इस्लाम जो ना हमारी हर जगह रहनुमाई करता है। सुन्नत बड़े इज्तिमा में ही खलीफा अमीर सुन्नत ने शुरका इस्लामी भाइयों को सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़विया, अत्तारिया में दाखिल करके शेख तरीकत अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मुरीद बनाया और दुआ करवाई। हमारा यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम हमें बख्श दे। अल्लाह करीम हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। और फिर सुन्नत भरे इज्तिमा में आए आशिकान रसूल की खलीफा अमीर सुन्नत से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दीनी कामों में हिस्सा लीजिए और अजर सवाब हासिल कीजिए। दावत इस्लामी के शोबा जामियातुल मदीना के तहत 24 अप्रैल 2026 को हबीबिया मस्जिद धोराजी कॉलोनी कराची सिंध पाकिस्तान में तकसीम असनाद इज्तिमा हुआ, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। तलबा-ए कराम को दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब भी दिलाई गई। सिंध पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके धोराजी कॉलोनी में कायम जामियातुल मदीना हबीबिया में दावत इस्लामी के शोबा जामियातुल मदीना के तहत 24 अप्रैल 2026 को तकसीम असनाद इज्तिमा हुआ, जिसमें कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत होने वाले सालाना इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तलबाए किराम, असतिज़े किराम, नाज़मीन, मुदर्रिसीन, नातख़्वां और जामियातुल मदीना के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया। मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी ने शुरका को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने और दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर रुकने मजलिस जामियातुल मदीना कराची सिटी और निगरान टाउन मुशावरत ने भी तलबा किराम की दीनी, तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई करते हुए इन्हें हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने, काफिलों में सफर करने और 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद हसन अत्तारी और शख्सियात ने पोजीशन होल्डर्स और दीगर तलबा किराम में सर्टिफिकेट्स और इनामत तकसीम किए। तकसीम असनाद इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल ने मदनी खबरों को तासुरात देते हुए कहा, मुफ्ती हसन साहब तशरीफ लाए थे, उनका बयान था और उन्होंने हमारी तरबियत फरमाई।
اور ہمیں وقت کی اہمیت پہ بیان ارشاد فرمایا. الحمدللہ بہت اچھا ایونٹ ہوا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جامعہ میں داخلہ لیں، جامعۃ المدینہ میں، کہ گھر میں کوئی ایک عالم ہونا چاہیے. الحمدللہ سارے استاد ہی ہمارے اچھے ہیں، لائق ہیں، پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہم پر. بڑا مزہ آیا اور بڑا اچھا لگا. تو ایک مشورتاً عرض ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ فرمائیں. آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور دعا بھی کروائی گئی. صحرائے مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 اپریل 2026 کو ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے اہداف بھی دیے. صحرائے مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 25 اپریل 2026 کو ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں صوبہ صحرائے مدینہ کے نگران صوبائی مشاورت حاجی محمد امین اتاری، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران ٹاؤن مشاورت، شعبہ مدنی کورسز، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، شعبہ قافلہ اور شعبہ امام مساجد کے صوبائی ذمہ داران نے شرکت کی. رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں اب جدول بنا کر اپنے طے شدہ مشوروں کے نظام کو نافذ کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لینی چاہیے. مدنی مشورے میں مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے کورسز، قافلوں، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دینی کاموں کو مزید مضبوط بنانے کا ذہن دیا اور اہداف بھی دیے، جس پر اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا. مدنی چینل کے ناظرین کو افسوسناک خبر دیں، کینیڈا سے جہاں اس کے شہر ٹورنٹو میں مبلغ دعوت اسلامی زہیر اتاری کی خالہ قضائی الہی سے انتقال کر گئیں. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد عاشقان رسول کے ہمراہ ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. کینیڈا میں مقیم مبلغ دعوت اسلامی زہیر اتاری کی خالہ گزشتہ دنوں قضائے الہی سے انتقال کر گئیں. ٹورنٹو سٹی میں مرحومہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں مرحومہ کے عزیز و اقارب سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحومہ اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے. مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں افریقی ملک تنزانیہ سے، جہاں فیضان مدینہ کروگوے ٹانگا میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام اور طلباء کرام اور مبلغین سمیت مقامی عاشقان رسول کا سفر ہوا، جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے. مزید احوال جانتے ہیں محمد یونس اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف مقامات پر راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہیں. ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملے گزشتہ دنوں افریقی ملک تنزانیہ کے ٹانگا ریجن کے اطراف علاقے کورگوے میں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے قافلے میں سفر کی سعادت پائی، جہاں دوران قافلہ اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنت آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں عاشقان رسول کی شرکت رہی. جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. انشاء اللہ الکریم کل بروز منگل 28 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں گوشت فروش اسلامی بھائیوں کے لیے ہونے جا رہا ہے خصوصی مدنی مذاکرہ. اس سلسلے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں گوشت کے کاروبار سے وابستہ عاشقان رسول میں دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت 28 اپریل 2026 کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈی نمبر 6 کی گوشت مارکیٹ کے علاوہ دیگر مقامات پر گوشت فروش اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. شعبہ رابطہ برائے تاجران کراچی سٹی ذمہ دار نے تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں مدنی مذاکرے کی برکات بتاتے ہوئے اس میں بھرپور شرکت کرنے کی دعوت دی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی کرنے، فیضان نماز کورس کرنے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن بھی دیا. اس پر اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی
अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। सबको लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, सारे दुकानदारों को पैगाम आपका पहुँचाऊँगा, इस अमेरिका में सबको लेकर आऊँगा इंशाल्लाह ताला। इस हवाले से शुबा राब्ता बराए ताजरान कराची सिटी जिम्मेदार ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, अल्हम्दुलिल्लाह 28 अप्रैल को खुसूसियत के साथ जो मदनी मुज़ाकरा हो रहा है वो गोश्त वालों का हो रहा है। तो यहाँ पर दावत का सिलसिला जारी, इन्होंने भी नियत की है कि इंशाल्लाह 28 अप्रैल को यहाँ जितनी भी गोश्त की दुकानें सब मिलकर इंशाल्लाह इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने भैंस कॉलोनी में कायम स्लॉटर हाउस के ऑफिस में चेयरमैन स्लॉटर हाउस और गोश्त के शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों से भी मुलाकात की और इन्हें भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की दावत दी, जिस पर चेयरमैन स्लॉटर हाउस ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। मेरी तमाम उन दोस्तों से, उन भाइयों से गुजारिश है जिनका गोश्त से रिलेटेड कोई भी काम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ख़ुद भी, मेरी पूरी टीम इस मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह शामिल होंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो तमाम लोग भी इसमें शिरकत करें। शोबा मदनी चैनल आम करें के तहत पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम जामियातुल मदीना रमजानिया और एक निजी स्कूल में 16 और 18 अप्रैल को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। शोबे के इस्लामी भाइयों ने बच्चों को सुन्नतें, आदाब और दुआएं सिखाई, जबकि किड्स मदनी चैनल देखने की तरगीब भी दिलाई। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम एक निजी स्कूल में शोबा मदनी चैनल आम करे के तहत स्टूडेंट्स के दरमियान एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और स्कूल टीचर्स ने शिरकत की। शोबा मदनी चैनल आम करे के मुल्तान डिवीजन जिम्मेदार ने स्टूडेंट्स में सुन्नत भरा बयान करते हुए इन्हें मुख्तलिफ सुन्नतें, आदाब और दुआएं सिखाई। मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल और डिजिटल दावत इस्लामी का तारुफ पेश किया और इन्हें भी अपने घरों में मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाई। बाद में इस्लामी भाइयों ने स्कूल प्रिंसिपल और टीचर से मुलाकात की और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया, जिस पर शुरका ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। इन्होंने जो है बच्चों को अच्छी जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में उनकी तरबियत की है और मुझे उम्मीद है बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये जो प्रोग्राम था ये बहुत अच्छा था, बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा। ये बहुत अच्छा आपका सिस्टम है और बच्चों को हम मतलब बताएंगे कि मदनी चैनल पर देखा करें, उसमें बहुत अच्छी चीजें आप दिखाते हैं, तो उसको अटेंड किया करें लाजमी। दूसरी जानिब गुड़ मंडी में कायम जामियातुल मदीना रमजानिया में 18 अप्रैल 2026 को शोबा मदनी चैनल आम करे के तहत सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा मदनी चैनल आम करे के मुल्तान डिवीजन जिम्मेदार ने तलबा इकराम को दुरूद पाक पढ़ते रहने, सुन्नतों पर अमल करने, नमाज की पाबंदी करने, दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर तलबा इकराम को डिजिटल दावत इस्लामी, मदनी चैनल और किड्स मदनी चैनल के हवाले से बताया गया और इन्हें भी मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाई गई। दावत इस्लामी के शोबा काफिला के तहत फैजान मदीना ननकाना पंजाब पाकिस्तान में 17, 18 और 19 अप्रैल 2026 को 3 दिन का अमीर काफिला कोर्स हुआ, जिसमें इस्लामी भाइयों को काफिलों की अहमियत बताई गई और अमीर काफिला को कैसा होना चाहिए के हवाले से रहनुमाई भी की गई। पंजाब पाकिस्तान के शहर ननकाना में कायम फैजान मदीना में 17, 18 और 19 अप्रैल को शोबा काफिला के तहत 3 दिन का अमीर काफिला कोर्स हुआ, जिसमें शोबे काफिला के डिवीजन जिम्मेदार, निगरान डिवीजन मुशावरत, निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत और मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। इस्लामी भाइयों को काफिलों की अहमियत बताई गई, जबकि काफिले का जदवल, अमीर काफिला को कैसा होना चाहिए, इनफरादी कोशिशें और नेकी की दावत आम करने का तरीका और इलाकाई दौरे का प्रैक्टिकल करवाया गया। शुरका की 12 दीनी कामों के हवाले से रहनुमाई की गई, जबकि इन्हें 12 दीनी कामों में हिस्सा लेने का जहन भी दिया गया। शोबा मदनी कोर्सेज के तहत 19 अप्रैल 2026 को मेलसी पंजाब पाकिस्तान की जामा मस्जिद रऊफ में होने वाला 3 दिन का फैजानी नमाज कोर्स इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें शुरका की दीनी और अखलाकी रहनुमाई की गई। पंजाब पाकिस्तान के शहर मेलसी में कायम जामा मस्जिद रऊफ में 3 दिन का होने वाला फैजान नमाज कोर्स 19 अप्रैल को इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की। शोबा मदनी कोर्सेज के मुअल्लिमीन और निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत विहाड़ी ने कोर्स करवाया। शुरका को फैजान नमाज कोर्स में नमाज की शराइत, फराइज, वाजिबात, मुफसिदात और वुजू गुस्ल के मसाइल सिखाए गए, जबकि नमाज का प्रैक्टिकल भी करवाया गया। इख्तिताम पर निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत ने आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई, जिस पर शुरकाए कोर्स ने अपनी अच्छी अच्छी नियतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नमाज का प्रैक्टिकल, नमाज के वाजिबात और इसके अलावा दीगर नमाज के ओवरऑल मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह में सिखाए जा रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त असातिज़ा इकराम ने मेहनत करके तालिब इल्मों को समझाया, उनको प्रैक्टिकल नमाज का तरीका सिखाया
माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। दावत इस्लामी के टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम वॉक इन जॉब इंटरव्यूज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से प्रोफेशनल्स ने इंटरव्यूज दिए। प्रोफेशनल्स ने दावत इस्लामी के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि दावत इस्लामी का हिस्सा बनकर अपने काम के जरिए दीन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा सेंट्रल HR इजारा डिपार्टमेंट के ज़ेली शोबे PAD के ज़ेर एहतमाम फैज़ान मदीना कराची सिंध पाकिस्तान में 25 अप्रैल 2026 को वॉक इन जॉब इंटरव्यू का सिलसिला हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता बासलाहियत अफराद ने शिरकत करके इंटरव्यू दिए। एडमिन HR ऑफिस का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 1500 से जायद प्रोफेशनल्स ने रिक्वायरमेंट ड्राइव में हिस्सा लिया, जिसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। टारगेट था हमने कि 500 से 1000 लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास 1500 से ज्यादा अफराद हमारे पास एंट्री हो चुकी है उनकी। इसके बाद इंटरव्यू होने के बाद हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ITs है, फाइनेंस है, इसके अलावा मैनेजमेंट है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर हम उसके एलिजिबल लोगों को हम वहाँ पर अप्लाई करवाएंगे। हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट का कहना था कि तो हमने उन प्रोफेशनल्स को जो मार्केट के अंदर जॉब्स भी ढूंढ रहे हैं और जिनको ये ख्याल था कि दावत इस्लामिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो इंट्रोडक्शन था और इन जैसे प्रोफेशनल्स को हमने मदऊ किया कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बेस्ट टैलेंट रिसोर्स ज्वाइन करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार का कहना था कि जैसे ही हमने इसको अपने स्टेटस पे लगाया है लाइक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, और जब हमारे वाइस चांसलर ने इसको देखा है तो उन्होंने बोला यार रमीज़ भाई आप ये हमारी तरफ कब करवाएंगे। या लाइक हमारे पास इतनी कॉल्स आई हैं, इसके बाद इतनी कॉल्स आई हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके प्रोफेसर से भी यहाँ पे आके विजिट्स किया है। इसमें अभी मेरे साथ एक मंसूर जफ़र साहब आए थे वाइस चांसलर, उन्होंने भी आके विजिट किया है, उन्होंने देखा है माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग। इंटरव्यू देने के लिए आए प्रोफेशनल्स का दावत इस्लामी के इस इकदाम को सराहते हुए कहना था कि दावत इस्लामी का हिस्सा बनकर अपने काम के जरिए दावत इस्लामी के पैगाम को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख के फैज़ान मदीना और आपकी रिक्रूटमेंट टीम है, उन्होंने कोऑपरेट किया हर लिहाज से, रिसेप्शन से लेकर इंटरव्यू के मराहिल तक। ऐसा इदारा जहाँ पे हमें दीनी माहौल भी मिले और साथ साथ हम हलाल रिज़्क भी कमाएं, तो हमें चाहिए कि हम वहीं से मुंसलिक हो जाएं ताकि हम दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल कर सकें। अपनी खिदमात को दावत इस्लामी की एक्टिविटीज़ में सर्व करें और इससे मुस्तफीद हों। अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायरमेंट ड्राइव में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कंपनियों में अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले साबिका और मौजूदा प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लेकर दावत इस्लामी पर अपने एतमाद का इजहार किया। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने हैदराबाद के शाह लतीफ टाउन में होने वाले इस्लामी बहनों के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की। नई जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए मुनाकिदा सेशन में ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह के मौजू पर गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को नेकी के कामों में हिस्सा लेने का सेहंदिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद सिंध में शाह लतीफ टाउन में 15 अप्रैल को हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद हुआ, जिसमें जिम्मेदारान समेत कुर्ब जवार से कसीर तादाद में इस्लामी बहनों ने शिरकत की। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी बहनों को हफ्तावार इज्तिमा की पाबंदी के साथ मदरसतुल मदीना बालिगात में शिरकत और हफ्तावार रिसाला पढ़ने की तरगीब दी, जिस पर इस्लामी बहनों ने अपनी अच्छी नीयतों का इजहार किया। आखिर में दुआ और मुलाकात का सिलसिला हुआ। हैदराबाद सिंध में 16 अप्रैल को जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए एक सेशन हुआ, जिसमें हैदराबाद डिवीजन निगरान की मुआविना, हैदराबाद डिवीजन की तहसील निगरान, डिस्ट्रिक्ट और तहसील शोबा जिम्मेदार इस्लामी बहनों ने शिरकत की। साहिबजादी अमीर अहले सुन्नत अपनी ज़ाहिरी और बातिनी इस्लाह के मौजू पर गुफ्तगू की और इस्लामी बहनों को दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी, जिस पर सेशन में शरीक इस्लामी बहनों ने 8 दीनी कामों को हसन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए अच्छी नीयतों का इजहार किया। शोबा हज उम्रा इस्लामी बहनों के तहत 19 अप्रैल को इस्लामाबाद में महफिल मदीना का इनेकाद हुआ, जिसमें आज़मीन हज इस्लामी बहनों ने शिरकत की। जिम्मेदार इस्लामी बहन ने सफर हज पर कदम ब कदम सबर करके अजर व सवाब कमाने का ज़हन दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी के शोबा हज उम्रा इस्लामी बहनों के तहत 19 अप्रैल को इस्लामाबाद में महफिल मदीना का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज इस्लामी बहनों समेत निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत, निगरान इस्लामाबाद सिटी और शोबे की जिम्मेदार इस्लामी बहनें भी मौजूद थीं। निगरान पाकिस्तान मुशावरत इस्लामी बहन ने हज पर जाने वाली इस्लामी बहनों की हज के अहम निकात पर रहनुमाई करते हुए इन्हें आदाब मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा बताए और सफर हज पर कदम कदम पर सबर करके अजर व सवाब कमाने का ज़हन भी दिया। इस मौके पर जिम्मेदार इस्लामी बहन ने आज़मीन इस्लामी बहनों को दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी कामों में हिस्सा लेने की भी तरगीब दी, जिस पर इन्होंने अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। आखिर में निगरान इस्लामाबाद सिटी इस्लामी बहन ने दुआ की, जिसके बाद सलातो सलाम पढ़ा गया और मुलाकात का सिलसिला हुआ।
مدنی خبروں کا اختتام اب یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawat-islami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 27 اپریل کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری